Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Sajid Khod and I welcome you all to my channel, Creative Tutorials with a very big heart. Dear children, today we are on our 11th chapter by name Statistics, okay, which is given on page number 67. It starts from this page number 67, okay. Now, my last video, if you have watched it, okay, you will come to know that it is based on third chapter, which is by name indices and cube root. Okay, now I have stopped making videos of chapters from the first term because by today or later by tomorrow, I guess all schools will wind up with their semester 1 examination. So I thought of now switching over to second term. From second term, 2 chapters videos are already uploaded on the channel. Okay, division of polynomials and I guess linear equations in one variable. Okay, so today I am starting with one more chapter from second term by name Statistics. Okay, and now for the entire rest of the year, I will be making videos on second semester's chapters. Okay, let's recall something. This is not new for you. Basically, you have already done this in your previous channels as well. Okay, so the number of pages of a book Ninad read for 5 consecutive days were 60, 50, 54, 46, 50. Find the average number of pages he read every day. Okay, so Ninad is one boy, okay, who has read one book, okay, and for 5 consecutive days he was reading that book, and these numbers which you can see are the number of pages he read each day. Okay, on the first day he read 60 pages, second day he read 50 pages, third day he read 54 pages, and this on fourth day, and these number of pages on fifth day. And they are asking us to find the average number of pages he read every day. So you can see that the number of pages read are not same on every day, correct? So they are asking us if these are the number of pages he read regularly, okay, what is the average number, okay, that he read daily? So we know this formula, average is equal to sum of all the scores. What are the scores? These numbers 60, 50, 54, 46 and 50, these numbers are nothing but these scores being given to us. So sum of all scores divided by total number of scores. So how many total number of scores are being given to us? You can see here 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so we have these values now. So let us put the values in these boxes. Alright, so 60 number, the sum of all scores. So these are all the scores. So 60 plus 50 plus 54 plus 46 plus 50. The whole divided by, in this box, total number of scores is going to come. Okay, and in this box given down below, what are we supposed to write? We are supposed to write here total number of scores, which we just counted some time back, at 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so I will get 5 over here. So when you add up all these numbers, you will get S2 60 divided by 5, and you cancel it, you will get 52. And ये cancellation कैसा हो रहा है वो भी देख लो. You see, 5 ones are 5, 5 fives are 25, but this number is 26. So 1 is short, that 1 will come and sit over here. So 1 and 0 becomes 10. So 5 twos are 10. So by doing this division, okay, you will get 52 as the answer. Then they are giving us, therefore, average of number of pages read daily is 52. This is the final answer. It's a very easy question and comes in your exams for 1 or 2 marks. Okay, it is that easy to score. So, and remember this, the average is also known as arithmetic mean or mean. So basically you have 3 names basically. One name is average. Second name is arithmetic mean. Third name is मीन. तो एग्जाम्स में अगर आपको एवरेज फाइंड करने के लिए बोला या अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए बोला या मीन फाइंड करने के लिए बोला तो आपका मतलब एक ही होता है. ठीक है, ये याद रखो. ये एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है एवरेज निकालने के लिए. ओके, लेकिन हर बार हम ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज बहुत टाइम जाता है ये ऐड करने के लिए. सो इफ यू हैव लेस नंबर ऑफ स्कोर्स तो ठीक है, लेकिन ज्यादा स्कोर्स अगर होंगे, ठीक है, तो बहुत तकलीफ हो जाती है हमारे लिए. तो उसके लिए कुछ तो पैटर्न ऐसा होना चाहिए, कुछ मेथड ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा काम आसान हो जाए. ओके, तो इस चैप्टर में हम वही सब सीखने वाले हैं. आपको दिख रहा होगा इस तरफ जो एक सॉल्व एग्जाम्पल मैंने किया आप लोगों के लिए, टेक्स्ट बुक का ही है वो भी.
ठीक है, जो आपका पेज नंबर 67 68 दोनों पे कवर किया गया है, और वो हम आज देखेंगे कि यही चीज एवरेज जो है इस मेथड से हम कैसा करते हैं. कम ऑन, लेट अस सी हियर. सो लेट्स लर्न अरिथमेटिक मीन. सो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. The marks obtained by 37 students of standard 8 in a test of 10 marks are given below. ठीक है, एक क्लास है जिसमें 37 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी एक टेस्ट हुई है, और स्टैंडर्ड 8 के बच्चे हैं, एक टेस्ट हुई है उनकी. टेस्ट का मार्क्स 10 मार्क था, ठीक है, 10 मार्क का पेपर था उनका टेस्ट का वो, और उनमें से वो कितने मार्क्स मिले हैं वो ये टोटल दिया हुआ है यहाँ पे, अलग 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 अलग. ठीक है, सो फाइंड द मीन ऑफ द डेटा. और ये सब मार्क्स जो दिए हुए हैं वो 37 बच्चों के मार्क्स हैं ये. ठीक है, तो रोल नंबर 1 को ये मिला, रोल नंबर 2 को इतने मार्क्स मिले, रोल नंबर 3 को इतने मार्क्स मिले. ये आप देखते जाओगे पूरा, तो ये लास्ट में 35 36 37 आ जाएगा. ठीक है, सो 35th रोल नंबर को इतना मार्क्स मिला, 36th रोल नंबर को इतने मार्क्स मिले, और जो 37th रोल नंबर है, लास्ट रोल नंबर जो है बच्चे का, उसको इतने मार्क्स मिले 10 में से. If this is the data being given to us, they are asking us find the mean of the data. तो इस डेटा का मीन निकालो. अभी आप देखोगे यहां पर भी हमने वही किया था. देखिए यहां पर नंबर ऑफ स्कोर्स हमको 1 2 3 4 5 दिए थे, तो ये 5 नंबर्स को ऐड करना हमारे लिए फिर भी ठीक था. अभी आप देखोगे यहां पर 37 स्कोर्स दिया है हमको, है ना, तो 37 नंबर्स को ऐड करना बहुत ही हेक्टिक जॉब है. ओके, तो इसके लिए हम ये मेथड यूज करने वाले हैं अभी. सो यू सी इन दिस यू विल मेक वन टेबल. मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं की है, ओके, बिकॉज मेरे को बहुत तकलीफ होती है मेरे हाथ से लिखने वगैरह के लिए, बड़ी मुश्किल से लिख पाता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आपको जरा राइटिंग थोड़ी अच्छी आए. बिकॉज अगर मैं आपके वीडियो बनाते बनाते अगर मैं लिखूंगा ना बच्चों ये, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज माई हैंड इज पेनिंग वेरी बैडली. ओके, तो इसके लिए मैं वो लाइंस वाइंस सब ड्रॉ नहीं किया हूँ, यहाँ पे बहुत झमेला हो जाता है मेरे लिए वो. ओके, हाथ का इश्यू है इसके लिए, वरना कोई बड़ी बात नहीं थी. ओके, कम ऑन नाउ. मार्क्स पहले आपकी कॉलम जो है 1 2 3 4 कॉलम्स बनाएंगे आप ऐसे. ठीक है, इन द फर्स्ट कॉलम यू विल राइट योर मार्क्स. ओके, जो आपके ये मार्क्स जो दिए हुए हैं ना, ये वाले मार्क्स, इसको हम स्कोर्स भी बोलते हैं, इसी को स्कोर्स भी लिखा हुआ है, और हम इसको डिनोट करेंगे बाय द सिंबल XI. स्मॉल x होगा, कैपिटल X नहीं लिखेंगे आप, स्मॉल x, और ये I होगा. ठीक है, ओके, ये सफिक्स I होगा यहाँ पे. अभी आप देखोगे कि मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स जो मिले हैं बच्चे को वो 2 है. करेक्ट ना? देखो किधर भी आपको 1 नंबर दिख नहीं रहा है. जितने भी यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं, यू कांट सी नंबर 1 ओवर देयर. दैट मींस द लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स स्टूडेंट्स हैव गॉट इज 2. ओके, सो हमारा सबसे पहला स्कोर आएगा नंबर 2. फिर देखो 3 मार्क्स मिला हुआ है तो हमने 3 लिखा, 4 भी मिला हुआ है तो 4 लिखा. देन सम स्टूडेंट्स हैव गॉट 5 मार्क्स, सी 5 इज हियर आल्सो, सो वी रोट 5. फिर किसी किसी को 6 मिले हैं, 7 भी मिले हैं, 8 भी मिले हैं, 9 भी मिले हैं, और किसी को फुल मार्क्स भी मिले हैं. ठीक है, सो एज पर द डेटा बीइंग गिवन टू अस, हम यहाँ पे हमारे स्कोर्स लिखेंगे. सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर यहाँ पर नंबर 1 लिखने के लिए भूल गए. ठीक है, वो क्यों नहीं है मैंने बताया मैंने आपको, बिकॉज 37 बच्चों में से किसी को भी 1 मार्क नहीं मिला है, इसके लिए 1 जो है हमारा स्कोर नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे स्कोर्स में हमारा 1 नहीं आ रहा है. Alright, I hope this is very clear. Fantastic. Come on. Then the second column is of telemarks. Telemarks में हम क्या करेंगे? Now we will count in this data being given to us that how many students are there in the class who have scored 2 marks. Okay? तो देखते हैं. एक तो 2 यहां दिख रहा है हमको, बराबर ना? अब देखो और 2 कहीं दिख रहा है क्या? और 2 कहीं पर भी नहीं है. इसका मतलब हमारी क्लास में जो 37 बच्चे हैं उनमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा है, रोल नंबर 1 वाला, उसको 2 मार्क्स मिले हैं. ओके, इसके लिए हम एक डैश डालेंगे या एक स्ट्रोक बोल लो, आप स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको, टेलीमार्क भी बोलते हैं इसको, अलग अलग नाम है उसके. तो एक आप स्ट्रोक ड्रॉ करोगे. वाई? बिकॉज 2 मार्क्स कमाने वाला सिर्फ एक ही बच्चा क्लास में है. ठीक है, अब नंबर 3 गिनते हैं. नंबर ये 3 मार्क्स किस किस को मिले हैं देखते हैं, कितने बच्चे को मिले हैं. कम ऑन लेट्स सी. एक 3 तो मुझे यहां दिख रहा है, उसके बाद 3 कहीं पर भी नहीं है, यानी कि पूरी क्लास में 37 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा है जिसको 3 मार्क्स मिले हैं. सो वी विल राइट 1 स्ट्रोक ओवर हियर, विल ड्रॉ 1 स्ट्रोक ओवर हियर. ठीक है, अब आता है मार्क्स 4. देखते हैं 4 मार्क्स कितने बच्चे को मिला है. 1 2
3 4 5 बराबर 5 बच्चे ऐसे हैं क्लास में 37 में से जिनको 4 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10. सो 1 2 3 4 4 आप स्ट्रोक्स जो ड्रॉ करोगे वो आप स्ट्रेट ड्रॉ करोगे वर्टिकल. फिफ्थ वाला जो होगा वो आप ऐसा क्रॉस कर दोगे. ठीक है, ये इसके लिए होता है क्रॉस करने के लिए क्योंकि हमको गिनने में आसानी होगी. जब नंबर ऑफ स्कोर्स ज्यादा होंगे दैट टाइम इट विल बिकम इजियर फॉर अस टू काउंट 5 5 5 5. ठीक है, तो सारे हम स्ट्रोक्स बनाने कर बैठेंगे तो और टेंशन हो जाता है आपने गिनने के लिए भी. ओके, तो याद रखो इस बात को. सो 1 2 3 4 एंड 5. अब नंबर 5 देखो. नंबर 5 कितने मार्क्स मिले हैं? 1 2 2 मिले हैं. करेक्ट, 2 बच्चों को 5 मार्क्स मिले हैं. इसलिए 5 मार्क्स के अगेंस्ट में जो टैली मार्क्स है वहां पे 1 2 2 स्ट्रोक्स बनाएंगे हम. फिर नंबर 6 देखते हैं. 1 2 3 4 5 5 है. 5 बच्चे ऐसे जिनको 6 मार्क्स मिले हैं. सो 1 2 3 4 एंड 5. ओके, देन नंबर 7 मार्क्स कितने बच्चे को मिला है देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 6 बच्चों को मिला है. चलो, सो 1 2 3 4 5 एंड देन 6. ओके, देन 8 मार्क्स 5 बच्चों को मिला है. अभी आप गिन सकते हो यहां से. देन 9 मार्क्स आप देखो यहां पे 5 दिख रहा है. 6 7 8 मतलब 8 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनको 9 मार्क्स मिले हैं. और 1 2 3 4 4 बच्चों को फुल मार्क्स मिला है. 10 आउट ऑफ 10 मिला है. ओके, अब ये स्ट्रोक्स पूरे हो गए हमारे. दैट मींस अगर टेली मार्क्स का कॉलम पूरा हो गया. अब टेली मार्क्स का जो है एग्जैक्टली यही चीज हम यहां लिखेंगे इन फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एफ आई. इसको हम बोलते हैं एफ आई से डिनोट करते हैं इसको. तो यहां 1 स्ट्रोक है, इसके लिए 1 स्ट्रोक है. सो 1. यहां 5 स्ट्रोक्स है 1 2 3 4 एंड 5, इसलिए 5 1 2 2 1 2 3 4 5, इसलिए 5. यहाँ पे 5 एंड 1 6. देन यहाँ पे 5 देन 5 6 7 8, तो 8 1 2 3 4 4. ओके, तो ये नंबर समझ में आ गए आपके. अब इसके नीचे लास्ट में हम कैपिटल एन लिखेंगे. कैपिटल एन इज इक्वल टू 37. ये 37 कहां से आया? देखो यहां पर हमको दिया हुआ है 37. करेक्ट ना, कि 37 स्टूडेंट्स क्लास में है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही कॉलम है जो हमारी फ्रीक्वेंसी. तो कितनी फ्रीक्वेंसी हमारी क्लास की है? 37 बच्चों की फ्रीक्वेंसी है. ओके, सो आवर एन विल कम एज 37 टोटल. अगर आपका इन सब का टोटल अगर 37 नहीं आ रहा है दैट मींस ये आपको हिंट देगा आपको कि कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया हुआ है, या तो इधर या तो इधर. ठीक है, तो अगर ये आपका 37 इस नंबर से मैच नहीं करेगा तो वहीं पर रुक जाना, पहले आगे मत बढ़ना, पहले इसको सही कर लेना. ठीक है, देख लेना कि कौन सा सेक्शन में आपने गलती की हुई है and accordingly rectify that mistake and then only proceed further. Okay, come on. Then the fourth column is FI प्रोडक्ट है. यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये वाला XI और ये वाला FI. ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ योर फ्रीक्वेंसी एंड दी स्कोर्स. सो आप देखो फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 आया, मल्टीप्लाइड बाय XI हमारा 2 है. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर इज 2. ओके, देन सेकेंड कॉलम में क्या आएगा? Fi into Xi. Fi is 1, Xi is 3. So 1 into 3. So 1 into 3 is 3. Okay. Then third column में Fi कितना है? 5. तो 5 आ गया multiplied by Xi. Xi कितना है? 4. तो 5 into 4 is 20. फिर ये कॉलम में अभी सब जगह देखो, ये Fi into Xi इतना आएगा, Fi into Xi इतना आएगा, Fi into Xi इतना आएगा, and so on. ऐसा पूरे सेक्शंस भर लोगे. All right, and then you will write this one. अब ये साइन जो है, ये सिंबल जो है, इसका मतलब सिग्मा. ओके, इसको भी अलग अलग नाम है. सिग्मा भी बोलते हैं इसको, या सम ऑफ बोलते हैं, या समेशन बोलते हैं. ठीक है, बट सिग्मा नाम से ज्यादा फेमस है तो हम सिग्मा ही बुलाएंगे इसको. ठीक है, सो सिग्मा FI. सिग्मा मतलब सबको ऐड करना है. जब मैंने आपको सिग्मा बताया, आई टुक 2 more names along with sigma. One, I took the name as sum and the other one was summation. And we know from mathematics, summation or sum means addition. So you will add all these numbers, 2, 3, 20, this, blah, 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 blah. You will add all these numbers.
and when you add all these numbers, you will get 259. Okay, so now these two numbers are very important for us, because then we have one formula which we'll be using it basically. Okay, and then there we will write the values and get the final answer. Okay, so make sure you don't make any mistake in writing these numbers. All right, now once you are done with finding n and sigma fi xi, then you will come here. You can see this blue part. Since the space was less, I wrote this in blue color. That mean formula है ना, तो यही बोल रहा है ना कि find the mean of the data. और हमने ये देखा है यहाँ पर कि एवरेज, अरिथमेटिक मीन और मीन तीनों का मतलब एक ही होता है, तो वही पूछ रहा है हमको। लेकिन अभी हम ये फॉर्मूला ऐसा वाला जो है न यूज करते हुए हम इस तरह यूज करने वाले हैं। बेसिकली है वही फॉर्मूला है वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम ऐड किए ना हम लोगों ने, यहाँ पे ये एडिंग मतलब यहाँ पे सम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारा fi है, और fi क्या है देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमारा दिख रहा है हमको ये मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज प्रोडक्ट है, तो ये चेंज है इस फॉर्मूला के अंदर। ओके, सो यू कैन सी नाउ मीन का फॉर्मूला है सिग्मा fi xi अपॉन n or divided by n. So sigma fi xi we got as 259, which will come here, divided by n, which we got as 37. This we got as well as they have given us here also. Okay, now if some students say that since they have given us this one, they will not make this section, so this will not work. You know why? Because अगर आप ये हमारा जो कॉलम है ये हमारे fi का कॉलम है, अगर हम fi का कॉलम अगर नहीं बनाएंगे तो प्रोडक्ट जब निकालना है fi xi, वहां हमारे पास fi की वैल्यू नहीं होगी हमारे पास, ठीक है, तो कंफ्यूजन होगा, तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है बेसिकली। तो इसके लिए हमको ये बनाना है एंड वी हैव टू राइट दैट n is equal to 37 over there. Okay, not just write but make sure that addition of all these figures it comes out to be 37 for this question. Okay, not for all questions. So ये नंबर जो n का जो है it will keep on changing, okay, from question to question. So अभी आप इसे डिवाइड करोगे, अब 259 जो है इसको हम स्प्लिट करेंगे, बिकॉज वी नो दैट 37 sevens are 259. सो यहाँ पे स्प्लिट कर दो, डिवाइडेड बाय 37, ये और ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम एंड यू आर लेफ्ट विद 7. तो आंसर इज 7. ओके, सो लास्ट में आप लिखोगे फाइनल स्टेप जिसको आपको हाफ मार्क अलॉटेड है. प्लीज डोंट फॉरगेट दिस टू राइट. सो देयरफॉर द मीन ऑफ द डेटा इज 7. ओके, सो आप देखो इतना इजी है ये करना, और इसी के बजाय अगर आप सोच सकते हो, अगर आप ये फॉर्मूला अगर यूज करने अगर जाओगे इस क्वेश्चन के लिए, तो जहां पर ये आपका जो है ना टोटल ये सम ऑफ ऑल स्कोर्स, यहां पर आपको कितना झमेला हो जाएगा. 2 + 4 + 4 + 8 + 6 + 37, इतने नंबर्स आपको 37 नंबर्स जो आपके पास है उतने बार आपको 37 टाइम्स आपको ऐड करना पड़ेगा आपको अलग अलग. और जरा सा अब यहां अगर चूक गए तो खेल खत्म. ओके, यू विल गेट रॉन्ग एंड 0 मार्क्स देयर. Okay, so you see that is the reason why they have given us this. All right, now अभी आप सोचेंगे क्या बेसिक डिफरेंस है, तो ये दिखा दो मैं आपको. जैसा I'll just write here for example. Okay, इतने से बॉक्स में मैं लिखता हूँ जरा सा आपके लिए, बिकॉज देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 + 5 + 5 + 5 + 5 किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अभी हम ऐड कर रहे हैं, करेक्ट ना. तो 5 + 5 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 5 is 20, 20 + 5 is 25, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 25. ओके, देखिए आप सोच सकते हो ये 5 नंबर जो लिखा है यहाँ पे, आई रोट 5 टाइम्स, तो मेरे लिए फिर भी इजी था, है ना, ऐड करना. आप सोच सकते हैं कि ये नंबर अगर मैं 10 बार या 20 बार या 50 बार अगर लिख दूंगा, तो जैसा नंबर बढ़ते जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स जितने बढ़ते जाएंगे वो उतना आपके लिए हेडेक हो जाएगा. वो कि यार कितना गिना, 5 गिना, 5 और 5 10 हो गया, 10 और ये इतना हो गया, फिर इतना हो गया, करेक्ट ना. तो वहां पर बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है. इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और तरीका है. नंबर तो सब जगह 5 ही है, तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय कितने बार अपीयर हुआ ये, 1 2 3 4 5 बार अपीयर हुआ, तो इसलिए हम यहाँ 5 लिख देंगे एंड यू नो 5 5 are 25. आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना इजी हो गया हमारे लिए प्रोडक्ट, राइट ना. तो इसके लिए बच्चों मैथ्स में ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो ये आप ध्यान रखो, और वही हमने चीज यहाँ पे की हुई है. अभी एक और बात देख लो, हमने सिर्फ नंबर 5 का एग्जांपल लिया तो हमारे लिए आसान हो गया. अगर मैं लिखता 5 + 3 + 9 + 10 + 12 + 17 + 3 + 1,
जब भी नंबर्स आगे पीछे ऊपर नीचे डांस करते होंगे तो आपका चीज और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। ठीक है, ये 5 को ऐड करना फिर भी इजी है, ओके, लेकिन जब नंबर्स ऊपर नीचे वाले होते हैं ना, छोटे बड़े नंबर जब साथ में आते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड द जॉब बिकम्स वेरी हेक्टिक। Okay, so under such circumstances, this method is a beautiful method, okay, where you can get your answer by making these 4 columns: xi, telemark, fi and fixi, then getting the value of n and sigma fixi, then form a result in front of you, put the values, get the answer, you are done. Okay, it is as simple as that. Okay, chalo. So my dear children, I hope that the entire solution is very well understood by each and everyone. Okay, and you have enjoyed also. Today is the first lecture of statistics. Okay, it's a very easy chapter, basically very scoring chapter. So please make it sure. So please make sure that you don't even afford to lose a single mark from this chapter. Okay, I'll try my level best to make it more easy for you to understand. Okay, so in coming videos I will come up with next this solved examples, and maybe solved example and 1 or 2 practice set as well, questions of practice set first as well. Okay, I'll see how things move about and accordingly we will see. Okay, so please don't worry. So keep in touch with your studies, be in touch with your books, don't give up. Okay, वेकेशंस चालू हो गया, मैंने कल ही बताया था अपने वीडियो के अंदर। अपना टेम्पो जो आपने बनाया है, रिदम जो बनाया आपने पढ़ाई का, इसको ब्रेक होने मत दो। ठीक है, एक बार ब्रेक अगर हो जाएगा तो इट विल टेक 1-2 months for you to come on the track. Okay, which will be too late then. Okay, chalo, so I'm done with my video. I hope that you've enjoyed it, and if you enjoyed it, you are loving studying with me, it's a humble request to please do like, share and subscribe my channel. Okay, and stay tuned for my next video. Till then, bye bye.